हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 16, जिसमें आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के ऊपर जो है काफ़ी प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देयर इज अ नेक्स्ट our most important chapter here, fundamental right and fundamental duties. It's an important chapter, but first point here, meaning and importance of right and duties. There is a most important here, meanings and importance of right and duties. We often talk about their right, but do now what does the term right mean? And right are rules of interaction between two people. They place constant and obligation upon the action of the state and individual or a group. For example, if one has a right to life, this means that others do not have the liberty to kill him or her. Rights are defined as a claim of individual that are necessary for their development of his or her own self and that are recognized by society or state. These are legal, social, and ethical principles of freedom and entitlement and are the fundamental normative rules about their what's allowed to people or open to people. According to the some legal system and social conventions and ethics theory, the right are often to consider as a fundamental or civilization began to regard it as the established pillar of society and culture. There's an important point here. There is a considered fundamental art civilizations began regarded as the established pillar of society and culture. But the right to have a real meaning of it is invisible perform a duty. A duty is the some things that someone is expected or required to do. The parents, for example, have a duty to be take care of their child. This is the most important example, parents. Parents have a duty to be take care of their child. You have a duties toward your parents. A teacher has a duty to educate students. In fact, rights and duties are two wheels on which their carry out of life move forward smoothly. Life can become smoother if the right and the duties go hand in hand as become complementary to each other. Right are what we want other to do for us, and whereas their duties are those acts which we should be perform from other. Thus, a right comes with an obligation to show respect for the rights of others. The obligation that is accompanying rights are in the form of duties. If we have the right
to enjoy the public facilities like a transport or health services. It becomes our duty to allow others to be avail their same. If we have the right of freedoms, it becomes our duty not to be misused and this and harm others. That's important. हम आज जो करेंगे मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य चैप्टर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी इस अध्याय में मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। तो यहाँ पर प्रथम पहलू तो यही है कि अधिकारों तथा कर्तव्यों का अर्थ तथा महत्व। आखिर अधिकारों तथा कर्तव्यों का अर्थ क्या है? देखिए, हम बाद में इसके जो है अधिकारों, सभी अधिकार के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और कर्तव्य का भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि अधिकार तथा कर्तव्य क्या अर्थ होता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। अगर इस बात को आप भली भांति समझ लेते हो तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि अधिकार तथा कर्तव्य का अर्थ व महत्व क्या होनी चाहिए। हम अक्सर अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकार शब्द का क्या अर्थ होता है? हम इस पे अधिकार जताते हैं, हम उस पे अधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तविकता में अधिकार होता क्या है? अधिकार लोगों के बीच पारंपरिक संबंध एक क्रिया के नियम है। यानी अधिकार जो हमें कुछ सीमाएं या दायित्व निर्धारित करती है। अधिकार का मतलब है, अगर आप किसी पर अधिकार कर रहे हो तो कुछ बातें ऐसी होगी जो संबंध और क्रियाओं के नियमों पर आधारित होगी और यह राज्य और व्यक्ति समूह के कार्य पर कुछ सीमा दायित्व भी लगाते हैं। अगर आपका अधिकार है तो आपको कुछ सीमाएं भी होगा और कुछ दायित्व भी रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के जीने का अधिकार है तो इसका अर्थ है कि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी जान लेने का अधिकार नहीं है उसको। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और मान लीजिए हमें जीने का अधिकार है, हम जी सकते हैं, लेकिन ये तो आपको किसी ने दिया नहीं है अधिकार कि आप दूसरे व्यक्ति की जान ले ले। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमें अधिकार जीने का है, लेकिन दूसरे को जो है किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ अर्थ है। आगे बात करें, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित ऐसे अधिकार हैं जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि अधिकार अगर आपको दिया गया है तो आपका व्यक्तित्व विकास काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है तथा समाज या राज्य द्वारा मान्यता भी प्राप्त होती है। क्योंकि जो अधिकार दी जाती है वो समाज और राज्य दोनों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान इस पर लागू नहीं की जा सकती। अधिकार स्वतंत्रता एवं हकदारी के कानून सामाजिक तथा नैतिक सिद्धांत होती है। यानी नैतिक सिद्धांत होना इसमें सम्मिलित होती है। कानूनी व्यवस्था सामाजिक परंपरा अथवा नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अधिकार मूलभूत आदर्श के नियम होते हैं जो लोगों को कुछ करने अथवा कुछ पाने का हक देते हैं। यानी अधिकार वो शब्द है जो किसी को आदर्श नियमों से जोड़ता है और उसको कुछ पाने का हक देता है। अधिकार सामान्यतः समाज अथवा संस्कृति का आधार स्तंभ के रूप में किसी भी सभ्यता के मूल माने जा सकते हैं। यानी अधिकार किसी भी सभ्यता के लिए कभी भी विकास हुआ हो, कहते वो समाज में लागू थे चाहे नहीं थे, लेकिन कहते हैं जहाँ पर अधिकार है वहाँ पर कुछ कर्तव्य भी लागू हो जाती है। और ये हर एक समाज में देखने को मिला है, चाहे पुरातन समय हो चाहे आज का समय हो। और ये हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि पुराने समय में अधिकार आखिर किस प्रकार व्यक्तियों का जीवन जो है सुलभ बनाता था। देखा जाए तो वास्तविक अर्थ तभी सा होगा जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का जो भली भांति पालन करे। जो व्यक्ति का अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है वो इन चीज़ों का जो है सही लाभ नहीं उठा सकता। कर्तव्य किसी व्यक्ति के कुछ किए जाने की अपेक्षा करता है। कर्तव्य जो होता है कुछ करने की जो है अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखना माता पिता का कर्तव्य है। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और कहते हैं जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तब से जो है माता पिता का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यानी उस समय हम कर्तव्य के विषय में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कर्तव्य जो था हमारे समाज में प्रेजेंट था, निहित था। आपको भी अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य बन जाता है। यानी देखिए
माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों का ध्यान रखना, और बच्चों का भी कर्तव्य है कि जब माता पिता वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो उनका ध्यान रखना। यानी देखा जाए तो ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर एक अपना कर्तव्य निभाता है तो दूसरे को भी निभाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेते हैं वो सदैव ही निरादर के जो है पात्र बन जाते हैं। कहते हैं अध्यापक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को शिक्षित करे। वास्तव में अधिकार का कर्तव्य जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। देखा जाए तो कर्तव्य और अधिकार जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। इनके बिना हम जो है नहीं आगे बढ़ सकते। कुछ कर्तव्य है तो कुछ अधिकार भी हैं, और कुछ अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी बन जाती हैं, जिनको ठीक से पालन करने से जीवन सरल चलने लग जाता है। आज के समाज में देखा जाए तो लोग इन दोनों शब्दों का अर्थ ही भूल चुके हैं। आज देखा जाए हमारा वास्तविक समाज में तो माता पिता से ऐसे मुख मोड़ लेते हैं जैसे उनका कोई कर्तव्य नहीं है। अधिकार तो सब चीज़ के लिए जताते हैं, लेकिन माता पिता से मुख मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सार्थकता हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, कर्तव्य एवं अधिकार। अधिकार का कर्तव्य एक दूसरे के पूरक बन जाने तथा दोनों के ठीक से पालन करने से जीवन ही आसान बन सकता है। अगर हर कोई अपना अधिकार और कर्तव्य को भली भांति पालन करे, सुचारू रूप से चलाएं, तो जीवन जो होता है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान बन जाता है। अधिकार वह है जो हम अपने लिए दूसरे द्वारा किए जाने का आशा करते हैं। यही होता है ना, माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों का पालन पोषण करे, और उनका ये अधिकार बन जाता है कि वो बच्चे से ये आशा रखते हैं कि वो उनके लिए अच्छा से अच्छा जो है कार्य प्रणाली करेंगे। तो कहते हैं यही बात सभी लेके चलता है। कहते हैं हम दूसरे के प्रति यही विश्वास रखते हैं, और यही कर्तव्य है और यही अधिकार है। इस तरह अधिकार दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने के दायित्व के साथ मिलती हैं। देखिए, अधिकार तभी आपको प्राप्त होगा जब आप जो है अधिकारों का सम्मान करते हैं और दूसरे के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं। और ये दायित्व जो अधिकार के साथ जुड़े होते हैं कर्तव्य कहलाते हैं। यानी अधिकार के साथ जो बात दायित्व जुड़ा होता है वही कर्तव्य होता है। यदि हम यातायात अथवा स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग का अधिकार है, हमें यातायात एवं स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने का हमें अधिकार है, तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि दूसरे व्यक्ति भी इन सेवाओं का उपयोग कर सके। यदि हम स्वतंत्रता का अधिकार है तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम इसका दुरुपयोग न करें और दूसरे किसी तरह की हानि न पहुंचाए। लेकिन आज के समय में देखिएगा तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया है और मतलब ही लोगों ने बदल के रख दिया है। तो चलिए, जो भी हो, ये सही नहीं है और न ही सही हो सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं
बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।